Yeah, thank you. So, dear friends, once again, good morning and pranam to all of you. I, Sagar Goyal, welcome you to this Tech Web webinar, which is organized by Indian Paint and Coating Association to engage its member and associates to accommodate ourselves to the current situation. Through these webinars, we are trying to cover some of the most important interactive topics which are useful to a large extent for the benefits of our members. In the first series, we have touched to the topics like architectural coating, construction materials, and their formulations, and it was followed by various types of additives, their usages, polyurethane coatings for waterborne and solvent-borne coatings. And our professor and now is Dr. Harish Agarwal has also solved some problems of the paint manufacturers by giving a lot of answers. And recently, with the help of Ashwini ji, we have touched the topic how the Factory Act and labor laws are impacting us and what is the responsibility of the employer towards it. Today, our very dear friend and always have a special place in our heart who not only guide us but also motivate us by providing out of the box solutions to our problems. This is only our dear Samish Bhai Dalal. He has given his precious time for his busy schedule. So I also extend my thanks to Mr. Rajiv Bhai Parekh. In fact, he has motivated him to come and give speech on this webinar. So today's topic is business in and beyond COVID-19. So friends, I would like to give a brief introduction of Samish Bhai Dalal. He is a professor at SP Jain School of Global Management, teaching students in Mumbai, Dubai, Singapore, and Australia. He is a graduate from MS University, Baroda. Then he has studied at Queensland, Harvard Business School, and Wharton Business School, USA. He owned various skills like presentation skills, communication skills to understand and resolve their family and business issues. This is going to be a very interactive session. So you are all requested to keep your videos on and please keep your speaker on mute mode. I am keeping you all on mute mode after the presentation. So it is over to Samish Bhai Dalal. Samish Bhai Dalal, please. Thank you, Sagarji. Thank you very much. Ashwini ji, namaste. It was nice having you, Rajiv Bhai. Obviously, very close and उनके अनुरोध को अपन ignore नहीं कर सकते, ऐसी condition आ जाती है. And I have told that many times on different platforms. Okay. So guys, let me get on to the whole idea behind कि हम लोग क्यों आज इकट्ठा हुए हैं. I understand that everybody is paying little attention. Guys, turn off your mobile phones and let's talk one-to-one. It will be nice. मैं लगभग 45 से 50 मिनट्स या 55 मिनट्स तक जाऊंगा and उसके बाद we will have some time for question answer, then we can roughly end that. So that's what the broad idea of this session has to be, or rather to be. Okay, so let's begin, guys. All right, welcome and good morning to every one of you being here. बहुत ही difficult है मेरे लिए ये session लेना इस angle से कि मैं कोई एक जगह पे खड़े रह के नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे बैठने का होता है. So थोड़ा challenge हो जाएगा, इसलिए मैं बात करते करते यूं हो जाओ तो don't mind. It's actually my mental place that I'm walking around. So that's the idea it's going to be. अमित भाई देख के हंस रहे, बोले समीश भाई इतने कंस्टेंट में कैसे काम करेंगे, लेकिन बराबर है. एक बार एक क्लास लेने गया था और उन्होंने होटल में शेड्यूल किया था. उन्होंने बोला था कि होटल का कमरा छोटा होगा, आपके लिए थोड़ा तकलीफ होएगा. बोला सर यही तो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट लिटिल बिगर स्पेस इज फाइन, बट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट अभी पिछले एक महीने से अच्छा खासा सिखा दिया है. So with different constraints, we all have learned to grow.
better. Okay, guys, let's understand a very, very important concept. Very important concept. मैंने अभी 2 मिनट पहले अश्विनी जी से बात किया, मैंने बोला कि सर कैसे हैं आप, और उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, फाइन है. लिटरली स्पीकिंग, क्या वो फाइन है? 1-2 मिनट पहले मैंने स्पीकर ऑफ रखा था, मेरा खुद का म्यूट रखा था, और मैं सुन रहा था बातें. तो महादेवन और अश्विनी जी और सब बात कर रहे थे, साला फैक्ट्री चालू होना चाहिए, लोग काम नहीं करेंगे तो आवक कैसे बढ़ेगी, ट्रेन खोल देना चाहिए, नहीं ट्रेन खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ट्रेन खोलेंगे तो ये हो जाएगा, अपने तो हॉटस्पॉट आ गया है तो हॉटस्पॉट में तो ये हो जाएगा. मतलब टेक्निकली देखा जाए तो फटी पड़ी कंडीशन है. लेकिन फिर भी जब मैंने उनको बोला कि अश्विनी जी कैसे, तो उन्होंने बोला मस्त है. यू नो गाइस, This is the spirit of the Indian businessman. वो बिंदास बोलता है, मस्त है, जब उसको मालूम है कि it's not that great. And I'll tell you why. Why ये spirit कहां से आती है? It's not that कि खाली उनमें है. जितने भी लोग बिजनेस करते हैं इन सब में है. और मैं ये मानता हूं कि जो लोग 50-55 के ऊपर है ना, उन लोग में ये स्पिरिट एक्सीडेंटली ज्यादा है. और उसका रीजन भी है. So I'll date back a little bit. मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा. So it's 1894. इस साल के बारे में आप में से कोई शायद जानता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद कोई नहीं जानता है तो दैट्स ओके. जानते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. 1894 में फर्स्ट टाइम पोलियो डिटेक्ट हुआ था. पोलियो नाम सुना है सबने, उसका तो वैक्सीन भी आता है. एंड इन 1894, एंड पहले साल में 132 पीपल डाइड इन द वर्मोंट एरिया ऑफ यूएसए. 1904, मतलब 10 साल के बाद तो इनको पता चला कि ये क्या चीज थी और ये पोलियो वायरस क्या होता है. एंड 2018 में ऐसा डिक्लेरेशन आया है कि पोलियो वायरस और पोलियो इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. न्यूज है, मैंने वैलिडेट नहीं किया है, जहां से इंटरनेट से सब मेरे को माहिती है उधर से मैं आपको रिप्रोड्यूस करता हूं. अभी कितना इरेडिकेट हुआ नहीं हुआ वो जानना जरूरी नहीं है गाइस, कुछ और इंपॉर्टेंट है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट. इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1894 से 2018 124 इयर्स हैं जिसमें इंडिया फॉट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड गॉट इट. डिफरेंट आविष्कार आए, डिफरेंट इनोवेशंस आए, इन्वेंशंस आए, डिस्कवरीज आई. द वर्ल्ड फेस्ड वर्ल्ड वॉर्स एंड केम आउट ऑफ इट. Countries like Japan and US became global giants. Russia का split हुआ and Indian business people ने इन्हीं crisis में the Tatas and the Birlas and everybody have originated and doing very good. सोचो guys, जो बीमारी को ढूंढने में 10 साल लगा और उसका वैक्सीन ढूंढने में उनको लगभग 15-20 साल लगे थे, वो बीमारी के होते हुए भी हम एक नई ट्रेजेक्टरी, एक नए गोल की तरफ जा सकते थे और जाके आए हैं. तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है गाइस? दिस इज नथिंग. दिस इज प्रैक्टिकली नथिंग. दिस इज अ वेरी शॉर्ट थिंग. इसका कारण है इंपैक्ट जरूर होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपैक्ट नहीं होगा, मैं उस पॉइंट पे आता हूं 2 मिनट में. इंपैक्ट जरूर होगा, तकलीफ जरूर पड़ेगी, सब कुछ चैलेंजेस जरूर आएगी. आई एम नॉट सेइंग कि हम इम्यून हैं, लेकिन एक बात का विश्वास करो कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट प्रैक्टिकली जीरो था, तब भी हम लोग ने फाइट करते करते, व्यक्ति से, विचार से, वस्तु से फाइट करते करते इधर तक पहुंचे हैं. तो आज हम टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली डेवलपमेंट के एंगल से कितने आगे चले गए हैं. वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस 100%. बट ये बोलने के बाद आपके दिमाग में ये भी तो नहीं आना चाहिए कि समीश भाई आप तो कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो. नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं. मैं जैसे एम्बिशियस बोला ना, केतन भाई कापड़िया का मुंडी ऐसे गया, बोले बराबर है, इतना ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. करेक्ट है, नहीं हूं. मैं रियलिस्ट आदमी हूं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कैसा. यू नो गाइस, बहुत सिंपल फंडामेंटल है. इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं. एक सॉलिड ऑप्टिमिस्ट, मतलब ये ऐसे है कि भाई मैं तो बाहर घूमूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, ये वायरस तो 5 मिनट में चला जाएगा, मतलब सुपर ऑप्टिमिस्ट.
3 तारीख को खुलेगा ही खुलेगा, 4 तारीख को दुनिया जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। मतलब फॉर देम द वर्ल्ड इज लाइक परफेक्ट ऑप्टिमिस्ट। दूसरे भयंकर पेसिमिस्ट। ये पेसिमिस्ट क्या, कि भयंकर लगाना जरूरी है। एक मेंटर है और वो मेंटर ने मेरे को फोन किया, बोले समीश भाई मैं आपको एक व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करो। अब चलो फोन करके कोई बोलता है तो देखना पड़ता है, कोई ऐसे भेज देता है तो दिन में इतने फॉरवर्ड जाते हैं, इग्नोर करो, तो इग्नोर करता हूँ। इन्होंने फोन के टाइम ने देखा, कुछ 4.5 मिनट का वीडियो था। 4.5 मिनट के वीडियो में वो भाई साहब ऐसा बताते हैं कि द फ्यूचर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फिनिश्ड, डूम्सडे आने वाला है, मतलब दुनिया समाप्त हो जाएगी, मैं और आप तो एकदम एकदम खलास हो जाएंगे। वो वीडियो देखने के बाद मैंने उनको फोन किया, मैं साहब आप क्या मानते हो? मेरे को बोलते हैं समीश भाई मैं तो मानता हूं इट इज करेक्ट, डूम्सडे मतलब दुनिया समाप्त, फिनिश, खलास, एकदम डन हो जाएगा। मैंने बोला आपकी तो बहू प्रेग्नेंट है और उसका ड्यू डेट तो जून जुलाई में है ना, डूम्सडे देखेगा आपका पोता? नहीं ऐसा नहीं, वो तो हाँ मतलब अभी ले आप ही डूम्सडे की बात करते हो, लेकिन उम्मीद आपके घर में पल रही है यार। व्हाई थिंक लाइक दैट? आई मीन द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एंड टुमारो। हम लोग इससे भी खराब क्राइसिस से ऐसे ही बाहर निकल आए हैं। नेचुरल कैलामिटीज की बात करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट डिप्रेशंस और फाइनेंशियल टैंगल्स 2008 है, इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो मैन मेड था। मैं तो इसका डिबेट भी नहीं कर रहा हूं कि मैनमेड है कि नेचुरल है, मैं तो सिंपल चीज बोल रहा हूं कि ऐसा बीमारी आता है तो वैसे ही निकल जाएगा। व्हाट्स अ बिग डील? हम लोग इससे भी कॉम्प्लेक्स बीमारी से बाहर निकले, सो डोंट वरी। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि अपन बिंदास हो जाएंगे। सो नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये होता है द रियलिस्ट। इसलिए पहले था ऑप्टिमिस्ट, फिर था पेसिमिस्ट, अभी तीसरा आता है रियलिस्ट। ये वो व्यक्ति है जो स्वीकार लेता है, हकीकत को स्वीकार लेता है। रियलिस्ट, हाँ भाई ये गिवन कंडीशन है, ऐसा है, दैट्स इट। ऑप्टिमिस्ट क्या करता है, यदि अपना वो क्या कहते हैं पानी में जहाज चला रहा होता है तो बोलता है नहीं हवा का रुख अपने हिसाब से बदलेगा, ये ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट, हवा का रुख बदलेगा ही नहीं, हमारी तो नहीं है, डूब जाएगी। रियलिस्ट क्या करता है, अरे बॉस हवा इस तरफ है तो अपनी नैया का जो सेल होता है, जो विंग्स होता है, उसको इस हिसाब से मोड़ दो कि अपन निकल जाए। The Indian family managed business is to be realist. जिन्हें परिस्थिति तकलीफ है तो उस परिस्थिति में हम अपने सेल को सेट करके निकल जाएंगे, we will be 100% okay with it. हाँ, लेकिन जब सेल को रीसेट करोगे, रफ वेदर से पास होगे तो इंजरी जरूर होती है, आपको, मेरे को, सबको होगी इंजरी, यानी कि लॉस। थोड़ा लंबा चौड़ा डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एक्सपोजर लॉस होगा जरूर, फटका पड़ेगा, फटका पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उससे मैं और आप इम्यून नहीं है। आप दिन में 10 बार अपना रामदेव बाबा का आसन करो, अनुलोम विलोम करो, ये करो वो करो, पॉजिटिव विचारों के लिए वीडियो सुनते रहो, लेकिन धंधे में डैमेज होएगा जरूर। उससे तुम्हारा धंधा इम्यून नहीं रहेगा। नहीं कौशिक भाई सच कह रहा हूं, मेरे को ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं काढ़ा पियो, मतलब काढ़ा पीने से खाली पेट साफ अच्छा होगा, धंधे में तकलीफ तो होएगी। ओके, कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा, दबाएगा, रोना पड़ेगा, उससे भीख मांगनी पड़ेगी, तुम्हारा सप्लायर माल देने में नाटक करेगा, ये होगा जरूर। अब हैविंग सेड दैट कि ये परिस्थिति है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट अ बिजनेसमैन हैज टू डू इस परिस्थिति में। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 2 थिंग्स टू डू। ओके, लिखना जरूरी नहीं है, आपको मालूम है मेरे क्लास में, लेकिन ये एक एक्सरसाइज है जो मैं चाहूंगा कि आप लिख लो, आपके रिकॉर्ड में रख लो। मैं चाहता हूं आप लोग लिख लो, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, काम आ जाएगा। ओके, हर व्यापारी को काम आ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से करवाई है एक्सरसाइज।
छोटी सी एक्सरसाइज है, एक 10-15 मिनट की है, अभी नहीं करेंगे, चिंता नहीं करना, अभी नहीं करेंगे, अभी वो टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप लिख लो कि कैसे करने का। सागर भाई हंसने का नहीं, करे करे। अभी करने बैठोगे तो कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास फोन पे है, मेरा कंप्यूटर इधर, वो सब, अरे 15 मिनट तो इसमें ढूंढने में चली जाएगी। वो नहीं, अपने को सिंपल पॉइंट है कि मैं आपको ये फंडा बताऊंगा क्या करना है। करना बहुत सिंपल है गाइस, इसको मैं बोलता हूं बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। इस पॉइंट को बोलते हैं बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी मीनिंग क्या है, मैं किसको टारगेट करूं? चलो अमित भाई को ही करता हूं, एकदम करीब में दिख भी गए, फट लेके हो गए। तो अमित भाई का बिजनेस है पेंट के प्रोडक्ट्स बनाने का, या पेंट बनाने का, या समझो कि पेंट के एंसिलरी, यानी कि रेजिन है, ये है, वो है, केमिकल भी बनाते। तो वो क्या करेंगे, अपने पिछले साल का डेटा लेंगे, जितना भी खर्च हुआ है ना, वो डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश एक्सपेंस को छोड़ के, ध्यान से सुनो गाइस, बाद में लिखो, पहले सुनो तो सही। नॉन कैश एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी खर्च हुए हैं, 1, 2 सब टाइप का खर्चा जो है वो एक लिस्ट में लिखेंगे, लिख दो एक लिस्ट में। फिर इस साल के लिए 10% उसको बढ़ा दो, एस्केलेट कर दो। अभी आप में से कोई लोग बोलेंगे कि सर पेट्रोल का भाव टूट गया, क्रूड का भाव टूट गया, तो अपने को रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा। गाइस मेरे को ये सब आर्गुमेंट सुनना नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो आप करंट परिस्थिति को ध्यान में लेके बोल रहे हो। मैं एक मॉडल बनाने की बात कर रहा हूं जो अपने को समझने में आसान है। इसलिए समझ लो कि मैंने पिछले साल रॉ मटेरियल खरीदा 10 लाख रुपए का, इस साल सीधा 11 लाख, और कुछ बुद्धि चलाने का ही नहीं। लास्ट ईयर मैंने एम्प्लॉय पगार ये सब मिला के मैंने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन दिया, समझो कि 2 लाख, इस साल 2,20,000 फट लेके कॉपी कर दिया। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉलम कॉपी करने के बाद ऊपर का जो रो है उसको खाली रखो, और उसमें लास्ट ईयर का टर्नओवर लेके आओ, और फिर उसको रिड्यूस करो 20% से, 30% से, 40% से, 50% से, 60, 80, जैसी आपकी मर्जी। तो समझो लास्ट ईयर अपना काम हुआ 5 करोड़ का, इस साल मैंने 20% से काट दिया तो 4 करोड़ का काम होगा। मैंने 40% से काट दिया तो ठीक है भाई, मेरा होगा अभी 3 करोड़ का काम। मैंने 60% से काट लिया, 2 करोड़ का काम होगा। What I actually did is लास्ट ईयर जो जितना टर्नओवर था उतना मैं इस साल लेके आता हूं, लेकिन करंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं भाव को, मतलब मेरी इनकम को मैंने तोड़ दिया, इन एक्सपेंस को मैंने बढ़ा दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, नीचे जो बैलेंस आता है मैं उसको चेक करूंगा। एवरीबॉडी पे अटेंशन गाइस, मैं उसको चेक करूंगा कि ये आवक थी, ये आवक होएगी 2020-21 में, और ये खर्च होगा तो नीचे इतना बचेगा। ये जो बचा नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि मैं इतने खर्चे को भी इतनी आवक से कंज्यूम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेप्रिसिएशन तो वैसे भी नॉन कैश एक्सपेंस है, तो तुम्हारा हाथ से पैसा तो जाने वाला नहीं, ठीक। यदि नेगेटिव है तो इट इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो ऊपर लगे जितने भी खर्च हैं उनमें से कितने फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, कितने वेरिएबल है। एंड ये फिक्स्ड एक्सपेंस को क्या मैं सेमी वेरिएबल में परिवर्तित कर सकता हूं थ्रू नेगोशिएशन और नॉट? स्टार्ट थिंकिंग। एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, जस्ट पे अटेंशन गाइस, जस्ट पे अटेंशन। लुधियाना में अपना एक बच्चा है जिसका लोहे का काम है, और उसका ऑब्वियसली आप सबको मालूम है लोहे की इंडस्ट्री में पावर बहुत जाता है, जबरदस्त पावर, मतलब वो ट्रांसफार्मर उसके बिल्डिंग फैक्ट्री के अंदर ही लगा के रखते हैं। उन्होंने ये रन किया, जैसे रन करके कंप्लीट किया, तो सीरीज में थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही रन करके कंप्लीट किया उसने देखा कि पावर का बिल तो आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। आउट ऑफ मतलब वो बोलते हैं सर पावर आ गया नहीं तो मैं नीचे जाने का जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही सकअप हो गया हूं। ही आस्क्ड हिज डैड के डैड हम पावर को लिख सकते हैं, मतलब पावर डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं कि हम इस बार मिनिमम चार्जेस पे नहीं करेंगे? बोलते बेटा पागल हो गया है, ऐसा कौन करेगा? ओके,
I have Ashim Ranjan raising a hand. Ashim, I will talk to your question a little later, if that's okay. In case you have any concern, you can put it on the chat. I will have a look at it. All can use speaker mode to see Samish Bhai on full screen. Okay, that is Ashwini ji's comment. Yeah. Anyways, so ये where were we? तो ये लड़के ने पावर इंडस्ट्री को कागज लिखने को बोला. उसके फादर ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा करना जरूरी नहीं. बोलते डैड ट्राई करने में क्या जाता है, मेक सेंस ऑल्सो. ठीक है, तो उन्होंने लेटर लिखा. एवरीबडी गाइस गेट सरप्राइज्ड. दे इनवाइटेड फॉर अ टॉक. दे इनवाइटेड फॉर अ टॉक. बोले ओके ठीक है, बोलिए गुप्ता साहब. इज नेम इज उदय गुप्ता, मेरे बच्चे का. बोलता है कि बोलिए गुप्ता साहब क्या बात है. बोले सर ये पावर बिल हमको अफोर्ड नहीं होएगा. बोले पर मैं कुछ नहीं कर सकता. बोले सर सरकार आरबीआई मोरेटोरियम का स्कीम देता है, ये देता है, वो देता है, आप भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करिए सर. ये देखो फैक्ट्री चली नहीं है, मीटर भी नहीं घूमा है, कुछ हुआ ही नहीं है. एक नया लोहे का कुछ बना नहीं, फैक्ट्री ओपन भी नहीं हुआ है. देखो तो सही, थोड़ा तो एडजस्ट करो. एंड दे सेड कि ठीक है लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. अभी तक अंजाम आया नहीं है रिजल्ट, लेकिन बात करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि जब टोटल बनाया तो पता चला साला खर्चा बहुत मुश्किल होएगा पावर को बेयर करने का. लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. एक दूसरा लड़का है, उन लोग का केमिकल का काम है, दिल्ली में है. एंड वो लोग केमिकल बनाते हैं. उसके फादर और बेटा दोनों, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे हैं, वो लोग मेरे से फोन पे बात कर रहे थे. फिर हम लोग जूम पे कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि सर मेरा इन्वेंट्री है केमिकल का लगभग 7 CR का. बोलो क्या बात करते हो? बोले हाँ सर, उसकी एक्सपायरी डेट है 22 डेज या 24 डेज. एक्सपायरी लाइफ डेट नहीं बोलते, एक्सपायरी लाइफ. बोले लोचा होने वाला है. बोले सर पहला स्टेप ये करिए कि पूछिए आपके सप्लायर को कि क्या वो खरीद सकता है, आई मीन ले सकता है वापिस. बोले सर वो कहां से लेगा, और लेगा तो मैं उसको पहुंचाऊंगा कैसे, और पहुंचा नहीं पाया तो वो वैसे भी ट्रांसपोर्ट में भी तकलीफ हो जाएगी. कहीं बीच में अटक गया तो मेरा हाथ से भी गया, माल भी गया, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा. चलो ठीक है. फिर हम लोग बहुत सारा ऑप्शंस इवैल्यूएट किया. उसमें एक और ऑप्शन हमने इवैल्यूएट किया, और ऑप्शन ये था कि कैन यू ऐड सम एडिटिव्स टू दैट, जिसके कारण इस केमिकल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है लेकिन लाइफ बढ़ सकती है. जब मैंने बच्चे को बोला, बोलता है सर पता नहीं, पापा को पूछता हूं. पापा को पूछा, पापा बोलते हैं कि मैं अपने छोटे भाई को पूछता हूं क्योंकि वो ज्यादा केमिकल के बारे में जानता है. इनफैक्ट इन तीनों से कुछ नहीं हुआ. उनका एक एम्प्लॉय है जो बीएससी केमिस्ट है, उसने बोला हाँ सर ये हो सकता है लेकिन थोड़ा खर्चा होएगा नहीं ये केमिकल लाने के लिए. बोले कितना खर्चा होगा? 7 करोड़ का केमिकल बच रहा है, सोच कैसे बचेगा. एंड दे फाइंड आउट अ वे. दे स्पेंड अबाउट 3 लाख रुपीज टू सेव 7 करोड़ का वर्थ मटेरियल. जब ये असेसमेंट करते हो गाइस तो आपको पता चलता है कि हमारे कितने एक्सपेंस मैनेजेबल है, कितने एक्सपेंस मैनेजेबल नहीं है. प्लीज डू दिस एक्सरसाइज. दैट्स माय पॉइंट नंबर 1. एज आई सेड, बिजनेस इन एंड बियॉन्ड में, तो इनमें अभी के समय पे हर व्यक्ति को अपने धंधे का ये सस्टेनेबल इवैल्यूएशन करना ही चाहिए. 110%. 110%. Say for example, Ketan Bhai has high-end employees. Ashwini ji has high-end employees. महंगे लोग हैं. अभी सबकी सैलरी शायद आज कैपेसिटी है पे करने की, लेकिन आपने जब लिस्ट बनाया तो देखा कि वो आपका बहुत बड़ा हेवी पॉकेट एक्सपेंस है. तो हो सकता है आप उनके साथ बैठ के बात करो, थोड़ा डिफरमेंट करो, काटो मत. डिफरमेंट आज 70% दिया, बोला तेरा 30% बाद में दूंगा, मैं भी कट ले रहा हूं, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं तेरा पैसा काटूंगा नहीं, तू लिख के देता हूं. आई एम गिविंग इन राइटिंग, सो बी रिलैक्स्ड, सिक्योर्ड. मैं हूं तेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज दैट वेरी वेरी आइडियली स्पीकिंग, डू दिस एक्सरसाइज. मैं ये रियलिटी कह रहा हूं. अपना एक स्टूडेंट है जो अहमदाबाद में है, और उसने क्या किया, ABC क्लासिफाई किया, A, B एंड C. ए उसका सबसे महंगे एम्प्लॉइज, उसमें उसने उनको 80% दिया, 20% डिफरमेंट कर दिया. बोले जब भी राइट टाइम आ जाएगा तुमको दे दूंगा, लेकिन पैसा मैं काट के अपने पास लेके भाग नहीं जाऊंगा. सो दैट्स गुड, कॉन्फिडेंस आया बंदे में. बी, वो लोग जिनका सैलरी वैसे ही लो था, उसमें उसने काटा ही नहीं. एंड सी, जो वर्कर्स थे उसने उसमें 2 स्टेप्स लिए. नंबर 1, उन लोग को बोला कि अब जाओ ही मत अपने गांव,
अपने फैक्ट्री के पीछे काफी जगह है रहने का, उधर रहना शुरू कर दो। उनका खाने पीने का भी ध्यान रखा। इस प्रोसेस में जब उनको चांस मिला रिस्टार्ट करने का, क्योंकि उनका वो एसेंशियल कमोडिटी में कुछ लाइसेंसिंग के प्रोसेस में आ गया था, ही हैड पीपल आल्सो, ही स्टार्टेड वर्किंग एंड ही सेड कि समीश भाई मैंने जिनका 1 महीने का भी डिफर किया ना, उनको भी मैं पे कर सकूंगा। दैट्स द आइडिया। सो जब तक ये डेटा नहीं बनाओगे तब तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि डेटा अपना वर्थ है कि नहीं है। इसलिए पहला एक्सरसाइज है कि प्लीज मेक बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, और ये जो आपने बनाया उसको कंप्लीटली बनाओ। यदि आपका बन जाता है, मेरे साथ शेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं, लेकिन यदि बना देते हो और फिर यदि आपको कुछ ऐसा डाउट है तो फिर बिंदास मेरे को कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, एंड फिर अपन ऐसा जूम मीटिंग 1-to-1 भी कर सकते हैं, फेस टाइम या व्हाट्सएप कॉल या जो भी आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये करो जरूरी है। इससे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिले अपने बच्चों में करंट परिस्थिति में। और आप सब तो सब पेंट वाले हैं, लेकिन पेंट में भी डिफरेंट, कोई डब्बा बनाता है तो कोई रेजिन बनाता है, तो केमिकल बनाता है, कोई एडिटिव बनाता है, कोई ये बनाता वो बनाता, कोई सरफेस वाला बनाता, कोई दीवार का बनाता, कोई बाहर का अंदर का, साला पेंट भी इतने सारे होते हैं। तो ये आपके अलग अलग सेक्टर हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए एप्लीकेबल होगा, बट ट्राई दिस। माय सेकंड पॉइंट, बिजनेस इन नाउ में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने को इस टाइम पे करने की है, एंड दैट इज इन केस आप लीवरेज्ड हैं, यानी कि आपके पास लोन है, ईएमआईज हैं, एंड दैट टू लॉन्ग टर्म बिग लोन है, और यदि आपके पास फंडिंग का कोई अभी व्यवस्था है तो आपका ईएमआई भर दो, मोरेटोरियम मत लो। लेकिन यदि फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, कैश पकड़ के रखना पड़ेगा हाथ में, तो मोरेटोरियम ले लो। बी वेरी क्लियर इन दिस गाइस। आज की तारीख में आप लोग अब तक बहुत सारे वेबिनार्स कर चुके होंगे, क्योंकि सागर जी ने बताया, अश्विनी जी ने बताया, राजीव भाई ने भी शेयर किया था, तो आपने एक नहीं 500 लोगों के मुंह से सुन चुके होंगे कैश इज द किंग। पर मैं एक स्टेप ज्यादा जाता हूं गाइस। कैश कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कंजर्वेशन करो। अपना एक स्टूडेंट है सूरत में, एंड उसको इस टाइम पे मार्केट एक्सपेंशन करने का है साउथ नॉर्थ ईस्ट में, एंड मैंने बोला कि सर मैं वहां पे डेपो लगाता हूं। तो पागल हो गया, डेपो लगाएगा? अपने कितने सारे अलुमनाई है, जरा एक दो जन को मिलो। सर कैसे मिलूं? बोला जैसे मेरे को अभी मिल रहा है, स्काइप पे, फोन पे, जूम पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, गो एंड टॉक टू देम। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू 5 ऑफ देम। उसमें से एक बंदे ने बोला कि मैं तेरा CNF बनने को तैयार हूं। सो नाउ ही हैज ए सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट विदाउट ही गोइंग देयर। गाइस इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन करना नो, लीवरेज नो, नो, लेकिन पार्टनर एक्सपेंशन हो सकता है तो प्लीज गो फॉर इट, एंड यूरोप विल बी योर नेक्स्ट बिग क्रैक। एल्डरली पॉपुलेशन था वहां पे, काफी लोगों का देहांत हो चुका है। एक ऐसा मार्केट जहां पे शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांस डिफरेंट थी हमारे से। हो सकता है, आई एम नॉट मेकिंग अ क्लेम, लेकिन उस मार्केट को स्टडी करना विल मेक सेंस टू यू गाइस। थिंक अबाउट कि वहां से कोई यहां पे आ सकता है विथ टेक्नोलॉजी, विथ ए मोर इनपुट ऑफ एक्सपेंशन। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन के लिए पार्टनरिंग करना सोचो गाइस। अभी जो मौका है ना आपके पास, इसमें आपको यही इन्वेस्ट करना है। समझो कि अमित भाई अपना अंकलेश्वर यूनिट पे जा नहीं सकते, उन्होंने बोला कि मेरा अंकलेश्वर यूनिट चालू हो गया है, सो व्हाट्स अ बिग डील, इट्स फैंटास्टिक। यदि आप जा नहीं सकते, इसका मतलब आपके पास अभी टाइम है। तो अभी के टाइम पे मैं अपनी नई लाइन में क्या क्या डालूं, कौन से प्रोडक्ट, किसके साथ पार्टनरिंग, कहां पे पार्टनरिंग। गाइस एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, एवरीबॉडी पे अटेंशन, थोड़ा प्लीज इधर ध्यान दो मेरे को। द मार्केटिंग इन फ्यूचर दैट इज बियॉन्ड लॉकडाउन, मैं कोविड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बियॉन्ड लॉकडाउन बोल रहा हूं। मार्केटिंग बियॉन्ड लॉकडाउन इज डिफरेंट इस तरह से होगा कि द डिफरेंस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ मल्टीपल एंड मल्टीप्लायर। डोंट वरी अबाउट द जार्गन, मैं उसको क्रैक भी कर दूंगा।
वो कौशिक भाई का रिएक्शन देख के मेरे को डर लगा, बोला क्या मतलब है भैया, जरा समझा तो सही, मल्टीपल मल्टीप्लायर करेक्ट है इनका पॉइंट। तो पहले क्या था कि भाई कौशिक भाई समझो कि अपना जो भी प्रोडक्ट है वो 10 कस्टमर को देते थे एंड सबको यदि वो एक एक टन देते थे। थिंक अबाउट चेंजिंग द फॉर्मेट, 20 कस्टमर आधा आधा टन, 30 कस्टमर 0.333 टन। क्यों? नए मार्केट में आप पैर फैलाएंगे उतना पोटेंशियलिटी ऑफ ग्रोथ एंड उतना डेंजर कम हो जाएगा ऑफ क्रैशिंग। आज एक सिंपल सी चीज है, आई एम सागर जी 100% एग्री किया, वो एडमिट भी करेंगे कि ये जो जूम का है आपने पेड वाला मॉडल है अश्विनी जी, आई एम श्योर इट्स अ पेड वाला मॉडल, तब भी तो इतने सारे लोग आ सकते हैं एंड अनलिमिटेड टाइम का है। पर पे कितना किया होगा? $14.99, या फिर वो महंगा वाला लिया होगा तो $19.99, इससे ज्यादा नहीं है। पर मंथ की बात कर रहा हूं, मतलब $20। अभी 215 लोग हैं, $20 डिवाइड बाय 200 लोग कर दो तो सबको कितना पे करने का आएगा, सोचा है? मतलब कुछ नहीं, तो आराम से एक मीटिंग का खर्चा तो ऐसे ही फ्री हो जाएगा। तो जूम को एक्चुअली $20 नहीं चार्ज करना चाहिए, $200 चार्ज करना चाहिए। लेकिन जूम स्टूपिड नहीं, मल्टीपल मल्टीप्लायर इक्वेशन को समझता। उसने बोला मैं 20 करूंगा, लेकिन मैं 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं रखना चाहता, मैं 10 लाख सब्सक्राइबर रखना चाहता हूं, मैं 20 लाख सब्सक्राइबर रखना चाहता हूं, मैं 30 लाख सब्सक्राइबर रखना चाहता हूं। तो 20 में जल्दी आएंगे, $15 में जल्दी आएंगे। इमेजिन द होल मॉडल गाइस, दिस इज वेयर द न्यू वेव इकोनॉमी इज। मतलब 50 ऊबर टैक्सी चलाने से उसको लाभ नहीं होएगा, लेकिन 5 लाख ऊबर टैक्सी चलाने से उसको 100% लाभ होएगा। दैट इज हाउ द इक्वेशन इज। उस ड्राइवर को भी बोला जाता है तू नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ाएगा तेरे को फायदा है, तू बैठा रहेगा तो तेरे को फायदा नहीं है। अपना काली पीली में क्या होता था, लॉन्ग हॉल ट्रिप मारेगा तो उसको फायदा था। ये बंदा छोटा मोटा कोई भी ट्रिप मारेगा, क्यों? क्योंकि उसको मूव होते रहना है एंड दैट एड्स टू हिज इनकम। The multiple and multiplier equation, guys, it is radically changing. जबरदस्त चेंज हो रहा है। Aim for that now, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन सब लोग अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। सागर भाई ये सोचेंगे कि साला मैं 10 जन को माल देता हूं, वो 10 में से 5 का ही पेमेंट आया। यदि मैं 20 को माल देता तो वही 50% रेशियो रखूंगा तो शायद 10 का पैसा आ जाएगा, 12 लोगों का पैसा आ जाएगा, मेरे पास बैंडविड्थ बड़ी हो जाएगी प्ले करने के लिए। That's the point. आज मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं, there is one family that has joined from Jodhpur, there is one person from Pune, there is one person from Bombay, there is one person from Delhi। मतलब सोचो यार, एक मीडियम से हम पूरे हिंदुस्तान को पहुंच गए हैं। पर यदि ईपका वाला सोचता कि नहीं मैं कन्फाइंड रहता हूं दिल्ली में, नॉर्थ में, बॉम्बे में, वेस्ट में, ऐसा, people would have not joined you guys. Today you are popular, you are famous, people love you, appreciate you, be a part of the organization। क्यों? क्योंकि they know you। बट आपने भी तो मार्केट को इतना बड़ा देखा। सो दिस इज द टाइम गाइस, मल्टीपल मल्टीप्लायर, जाके बड़ा बैंडविड्थ देखो, मार्केट को बिगर देखो, ऑप्शंस ज्यादा इवैल्यूएट करो। इसलिए अब भी जो आपके पास फुर्सत मिली है ना, इंडिया का मैप लो हाथ में, छोटे छोटे कस्बे को आइडेंटिफाई करो, बोले ये मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं जाता है, ये मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं जाता है, ठीक है, तो इसके सबसे करीबी सेंटर कौन सा है, उसको फोन करके बोलो डूड क्या करता है, जरा जाए एक बार। बोलते सर उधर अपना माल नहीं बिकता। बोले मालूम है नहीं बिकता, इसलिए तो तेरे को बोला जा, बिकता होता तेरे को फोन करके बोला ज्यादा माल बेच, पहले नया मार्केट तो डेवलप कर। सर वहां पे तो ऑलरेडी केतन भाई का जाता है, तुम्हारा नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं, केतन का ये आउटडोर वाला है, अपना इंडोर वाला है। अरे नहीं सर उनका आउटडोर इंडोर दोनों है। अरे अपना मशीन वाला पेंट है, तू भाई बेचने यार, अपने पास ऑप्शन ही कितने सारे हैं, माल बेच। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोग्राम योरसेल्फ गाइस। मतलब गिवन अ चॉइस, आई कैन ऑलवेज कीप डूइंग वेबिनार विथ माय अलुमनाई एंड माय स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आपको मिलूंगा ही नहीं। आज दोपहर में 2 बजे मैं ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ बात कर रहा हूं, कल दोपहर में मैं जेसी यानी कि जूनियर चेंबर वाले लोगों के साथ बात कर रहा हूं।
परसों मैं लायंस के एक इवेंट में हूं, उसके बाद मैं प्रिंटिंग एसोसिएशन में हूं। भाई गाइस, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप पहुंच पाओगे तो तब भी आप इस अपने विचार को पहुंचा पाते हो। तो हमारे केस में इट्स द विचार, आपके केस में इट्स द प्रोडक्ट इन द मार्केट। थिंक अबाउट इट गाइस। सो दैट्स समथिंग माय सेकंड फंडामेंटल कि व्हेन आई से डोंट लीवरेज, नो इन्वेस्टमेंट, का मतलब एक्सपेंशन बंद नहीं है, एक्सपेंशन करना ही है, चॉइस ही नहीं है। एंड अभी उसका आपको सीडेशन यानी कि उसका सीड रखने का है, एंड उस सीड को रखो जिसमें आप ये एक्सपेंशन कर सकते हो। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एनीवेज, बिजनेस इन के दो फंडा मैंने आपको बताया। वन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। आई एम श्योर आप लोग वो समझ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाए, एंड इंटरनली आप शेयर करना चाहो तो आपकी मर्जी। जैसे यू गाइस कुड बी फ्रेंड्स, लाइक महादेवन अश्विनी जी का फ्रेंड है तो शेयर करेगा, महादेवन अमित पारेख का फ्रेंड है, अमित भाई, केतन भाई को, आपकी मर्जी। एंड नहीं शेयर करना चाहो तो भी ठीक है, आपके चार्ट अकाउंट सर डिस्कस भी कर सकते हो, ओके। पर वैसे उसमें इन सब का रोल नहीं है। अपने बच्चों ने तो खुद ब खुद बना लिया, बोले आपने को तो मालूम ही नहीं सर, एक के दो कितना खर्च करते हैं, कितना जो पैसा जाता है वही हिसाब लिखने का है। मतलब परफेक्ट बेटा, एकदम सिंपल। एक जन ने मेरे को मस्त आंसर भी दिया, बस सर टोटल का टोटल को 10% बढ़ा दूं तो काय को नहीं करेगा। बेटा अपने को जानना है कि कौन से में कितना खर्च हो रहा है ताकि कौन सा मैनेजेबल है। हाँ, बोले इवेंट एडवर्टाइजमेंट्स इस साल नहीं करेंगे, तो करेक्ट है, लॉजिकल है। तो तुमको ऑटोमेटिक पता चला कि कौन सा तुमको जीरो करने का है, कौन सा काटने का, कौन सा नहीं, एक्सेट्रा। डिस्क्रिशनरी पेमेंट, फॉर एग्जांपल यदि आप मैरियट की मेंबरशिप के लिए पे करते थे बिकॉज आपके गेस्ट आते हैं तो उनको वहां रखने के लिए, तो इस साल शायद आप मैरियट का मेंबरशिप रिन्यू नहीं करोगे। पर ये भी जरूरी नहीं, मैरियट ही आपके लिए एकदम मस्त ऑफर लेके आता है, बोले जो पिछले वाले मेंबर्स थे उनके लिए हम 60% ऑफ लेके आए। तो यस, दैट्स मेक सेंस, लेट्स कंटिन्यू। तो इवैल्यूएट करने का है, इसलिए ये रिपोर्ट बनाने का है। एनीवेज, सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्सपैंड, मल्टीपल, मल्टीप्लाई। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सको उतना अच्छा है, आप लोग के लिए फायदेमंद है गाइस। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर बिजनेस इन। एंड नाउ बियॉन्ड। गाइस, बियॉन्ड में मेरा एक अच्छा खासा, आई वोंट नॉट यूज द वर्ड रिसर्च, आई एम नॉट अ टिपिकल बुकिश वाला रिसर्च, बट आई एम अ रिसर्च इनटू यू नो व्हाट यू कैन से इज रिसर्च बाय माय स्टूडेंट्स, ऐसा मान लीजिए आप। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को हर रोज एक नया बिजनेस आइडिया। मैं आपको सच बताऊं गाइस, हम में से काफी लोग हैं ना 40-45 वाले हैं, और इनके पेरेंट्स 60-65 वाले हो गए। इसलिए ना हम लोग एक 5-10% भी दुखी हो सकते हैं। सच बात, सुनो, ध्यान से सुनो। आप में से कुछ लोग ना 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 मैं ऐसा नहीं हूं, शांति रखो, मेरी बात सुनो, आप अटैक मत करो। मैं हाँ नहीं, अब मैं देखा है, हाँ ना, मैं कहा दोस्तों शांति रख, तो फिर भी थोड़ा डाउन फील करते हैं। आपको पता है द एज ग्रुप ऑफ 15 to 22 साला लीथल एज ग्रुप है। ये ऐसा एज ग्रुप है जो रात को 1:30, 2, 3, 4 बजे तक नेटफ्लिक्स पे अपना ग्रुप वीडियो देखते हैं। उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे पुरानी मैच का भी डिस्कशन होता है। उनके फोन में उनको पूछे कि बेटा कोरोना, बोलते हैं दैट्स ओके, आई मीन नथिंग इज गोना हैपन, देयर गोना बी अ वैक्सीन, वी गोना डू ओके, दैट्स फाइन। हम लोग का तो अभी प्लान बन रहा है कि दिस दिसंबर वेयर वी आर गोइंग टू गो फॉर स्की। बड़ा चमाट मारूंगा, स्की का बोल रहा है। तो डैड हम लोग ओवरसीज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ औली में जाएंगे। औली इज राइट इन इंडिया, आई मीन दैट्स नॉट फार। यहीं से अभी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फ्लाइट लेके, दैट्स इट, सो सिंपल, सो सिंपल। ये बट ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये एजाइल है, ये अलर्ट है, और इनकी एडेप्टेबिलिटी मेरी और आपकी एडेप्टेबिलिटी से 10 टाइम्स बेटर है। मेरे को और आपको बोलेंगे कि मास्क पहन के घूमो, अपने को ऐसा फीलिंग होएगा। वो लोग फैंटास्टिक मास्क ले लेंगे, थोड़े टाइम के बाद देखना जे कलर का शर्ट, जे कलर का पैंट, उसके कॉन्ट्रास्ट वाला मास्क आएगा। अरे मैं दिल्ली में अपने एक स्टूडेंट है, मेरे को बोलता है कि सर आई हैव मास्क, आई कैन सप्लाई टू यू। मुझे बेटा वेरी गुड, बट व्हाट इज द प्राइस ऑफ मास्क? बोले 180 रुपीज। मुझे बेटा ये तो ज्यादा है। सर 150 वाला भी है। तो क्या बात करता है? अरे सर 110 का भी है। तो बेटा मास्क है कि नहीं है? बोले सर 91 का भी है। तो ये तो ज्यादा नहीं हो गया? बोले सर 52 रुपीज वाला भी है।
मैंने बोला बेटा तू दिल्ली से फोन करा, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के इतने सारे वेरिएंट एक ही आदमी मेरे को एक ही फोन कॉल में एक ही सांस में और कोई दे ही नहीं सकता। बट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज अनदर स्टूडेंट हु सेंड मी अ वीडियो, बोले सर देयर इज अ मास्क ऑफ लुई विटॉन 3000। लुई विटॉन का मास्क, मतलब इसमें भी गुची अरमानी घुस गए, अरे उसमें भी आप चाहेंगे, मतलब किधर किधर लोग क्या करेंगे गाइस, दैट्स द न्यू नॉर्मल। तो beyond lockdown, trust me guys, you're not going to face a normal challenge, you'll face a challenge of a very different type। धर्मेंद्र शर्मा बाद में लिखो, पहले सुनो। You will face a challenge of different type, and that type is going to be led by these youngsters, जो मेरे और आपसे डिफरेंट सोचेंगे। मैं विपरार्थ नहीं बोलता हूं, समझ लो शब्द को, विपरार्थ नहीं, उल्टा नहीं सोचेंगे, डिफरेंट सोचेंगे। यदि हम में से कोई उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे तो शायद वी माइट बी एबल टू बी ओके ऑल्सो। ये जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ ना, ये लॉकडाउन 2.0 नहीं, पहला वाला, वो कौन सी डेट था, 24 था आई थिंक, हाँ 24 ही था, 24 मार्च। थाने में अपना एक लड़का है और उसका एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो स्पेक्टिकल निकालने में मेरे को बेटर दिखते हैं, मेरे चश्मे में खराबी थी क्या, चश्मा निकाला तुम लोग ज्यादा क्लियर दिख रहे हो, चश्मा पहना तो बेकार दिख रहे थे, चलो कोई नहीं, पर आप लोग मेरे को चश्मे में यूज टू हो इसलिए मैं चश्मा पहने रखता हूँ। हाँ, तो ये थाने में इसका एक रेस्टोरेंट है, 8:30 बजे आके बोल दिया लॉकडाउन, ओके। ये सर क्या है कि हर चीज 8 साढ़े 8 बजे ही करते हैं, नोट भी 8 साढ़े 8 बजे बंद किया था, लॉकडाउन भी 8 साढ़े 8 बजे ही करते हैं। तो सर जब भी 8 साढ़े 8 बजे आते हैं ना, थोड़ी फटती है कि कुछ बंद होने वाला है। अभी स्टार्टिंग के लिए वो सुबह का टाइम चूज करे तो बेटर है, 8:30 बजे सुबह, यू नो लाइक, तो वी नाउ अंडरस्टैंड। इवनिंग 8 o'clock फ्रेंड को ही पूछ लेगा, ब्रो क्या बंद किया, मॉर्निंग 8 o'clock ब्रो क्या स्टार्ट किया, आई मीन थिंक अबाउट इट गाइस, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एनीवेज, तो बंद कर दिया। ये लड़का अपने पापा को बोलता है, पापा अभी अपन क्या करेंगे, पापा भी बोलता है, बेटा मेरे को भी नहीं मालूम है, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा आया कि अपने को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है, तो मेरे को भी सोचने का मौका दो, लेट अस थिंक। ओके, उसके एम्प्लॉइज जो देहाती वर्कर्स थे, यू अंडरस्टैंड ना, वर्कर्स मतलब रेस्टोरेंट में जिस तरह के वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट ऑल फ्रॉम बॉम्बे एंड थाने ओनली, आई होप यू अंडरस्टैंड, दे आर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस, लाइक दे कुड बी नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो और इवन बिहार ओडिशा ऑल्सो। सो सब सामान लेके भागने की तैयारी, ऑटो बार पकड़ रहे। पापा ने देखा, पापा बोलते हैं क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, अभी कहां भीड़ में मरने जाओगे, बैठो आज रात, सोचते हैं कल सुबह। पर सेठ, अरे अपना रेस्टोरेंट है भाई, खाना तो है ही नहीं, शांति से खाओ, तुम भी कुछ खाओ, मेरे को भी कुछ खिलाओ, अच्छा सा कुछ बनाओ। तो उसके शेफ ने बोला सर ठीक है चलो मस्त खाना बनाते हैं। तो घर में भी सब लोग ने वही खाया, सो गए। ऑब्वियसली द फादर डिड नॉट हैव अ गुड स्लीप, बट दैट्स नॉर्मल, मतलब ये तुम्हारी लाइफ में पहला झटका है तो बंदा कैसे लेगा। नेक्स्ट डे सुबह उठा तो उठते ही उसकी मम्मी ने बोला, लड़के की मम्मी ने, तो बेटा 4th फ्लोर पे एक आंटी है ना, उनको ये पर्टिकुलर आटा चाहिए, अपने पास है। बोलते मम्मा होएगा ना, अपना तो रेस्टोरेंट है, अपन तो 50-60 किलो रखते हैं आटा, आराम से निकलेगा। बोलते जरा उनको पहुंचा देने। करेक्ट धर्मेंद्र, करेक्ट, तुम्हारा मुंडी जो हिल रहा है, इट मींस यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड नाउ। वो बेटा अपनी पापा को बोलते, पापा ये आटा तो बहुत लोगों को चाहिए। बोले हाँ, अपन चालू करें सप्लाई करने का। यही जो अपने वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं 50-50 की गुनी में से 1-1 किलो का थैली बनाओ, हर टाइप का आटा मिलेगा। बोले बेटा चलेगा, अरे चलेगा क्या पापा, सब लोग को चाहिए, रेस्टोरेंट वैसे भी बंद है, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, इससे बेटर कि यूज हो जाए। इंटरेस्टिंग है, अपना तो रेस्टोरेंट का नाम भी है, अपन अपने रेस्टोरेंट की थैली पे ही बेचते हैं, इसलिए सबको मालूम पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट का ही है। आइडिया अच्छा है। 2 वीक में वो बच्चा मेरे को बोलता है, सर मैं सोचता हूं रेस्टोरेंट चालू ही नहीं करूं, यही बेटर धंधा है। साला कहाँ बनाओ, तू बोला आके जैन चाहिए, तू बोला कि कांदा लहसुन नहीं चाहिए, तू बोला मेरे को नॉन स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी चाहिए, पनीर ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, टिंडा ऐसा चाहिए, भिंडा वैसा चाहिए। मार गोली साला टिंडा भिंडा पटाखा, अपन सीधा इसमें घुस जाए। उसका पापा बोलते हैं बेटा आइडिया गलत नहीं है, और 10 जन को बुला लेते हैं। आई मीन थिंक अबाउट, तू बोला थिंक। सो अ गाय हु इज 45, 48, वो बेचारा सोच रहा है
ये माँ ने उसको एक काम दिया, बच्चों को उसमें से आइडिया सूझा, आज निकल पड़ी है। एंड ये पता है कहां से मेरे पास न्यूज आया? ये न्यूज आया फ्रॉम माय स्टूडेंट इन हैदराबाद हु सप्लाइंग चिली पाउडर टू हिम। और मेरे को बोलता है कि सर उसने नया चिली पाउडर का वो 2 गुनी का ऑर्डर दिया। मैं बोला क्यों? बोले उसको चिली पाउडर चाहिए, रिटेल में बेचेगा। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, दोनों एसेंशियल कमोडिटी में है, दे आर ऑल गुड विद इट, एवरीबॉडी इज हैप्पी। ये जो कंस्ट्रेंट में से बाहर निकल के न्यू आइडियाज को मिक्स करके कमिंग विद अ न्यू बिजनेस, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यंगस्टर्स गाइस। लीवरेज इट, यूज इट। पोस्ट वीडियो बना के फटाफट वायरल करेंगे कि अपने को लगे कि इसमें क्या हो रहा है। मतलब देयर विल बी अ पर्सन जो आके बोलेगा कि मेरा पेंट लगाओ, इसके ऊपर कोई वायरस टिकता नहीं है। अब कोई बच्चा है वो पेंट का बिजनेस नहीं करता, दूर से तुमको देखेगा, बोले ओके अश्विनी जी ने ऐसा पेंट बनाया ना, चल कोई नहीं। फिर जाके वो दुकान में और या फिर वही रेस्टोरेंट में जाएगा, बोले तुमने ये पेंट लगाया? हाँ। वरना अपना तो मेन रोड पे है, बोले हाँ। डस्ट तो बहुत उड़ेगी? हाँ। डस्ट के कारण इसके ऊपर धूल जम जाएगी? बोले हाँ। एक काम करो, मेरा सॉल्यूशन इसी पेंट पे लगाओ, ये पेंट निकलेगा भी नहीं और वायरस मर जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। तो तुमने पेंट बेचा, वायरस नहीं होगा, लेकिन इसने सॉल्यूशन बेचा कि डस्ट भी निकल जाएगा, वायरस भी नहीं होगा। And this is where the younger generation is going to capitalize on 3 words. Please write it down, guys. 3 words. 3 words that will change the landscape of marketing. Safety, security, spacing. Safety, security, spacing. 3 शब्द जब तक, एंड मैं दूसरा एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनो। सचिन बाद में लिखो बेटा, 3 शब्द है, कितना लंबा लिखेगा? हाँ ओके। ये देखो सचिन कितना मस्त आदमी, लेटे लेटे अपना वेबिनार कर सकता है। अभी सोचो ये रियल लाइफ हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, पर एंजॉय करो यार। कुछ लोग तो अभी क्या कहते हैं, नाइट ड्रेस में ही घूम रहे हैं, बराबर है। 11 बजे भी नाइट ड्रेस में घूमने का मंडे पे कब चांस मिलता था? इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इन फ्यूचर व्हाई दिस 3 वर्ड्स विल बी यूज्ड। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज द फियर, नॉट द वायरस। द प्रॉब्लम इज द फियर। मेरे को एक दिन खांसी आती है ना, तो साला नींद नहीं आती है। एक दिन खांसी आती है तो लाइन में खड़े हो, बाजू वाले ने खांस दिया, खाली वो बेचारा मावा खा रहा था और मावा मुंह में अटक गया, तब भी अपन उसको शक की नजर से देखेंगे। ऐसा नहीं जाके उसको बोलेंगे भाई साहब क्या हुआ, मावा अटक गया बेटा, जरा कुछ इधर दबाक दबाक मार दे, अपने को नहीं होएगा ऐसा। द फियर इज मोर पावरफुल देन द बीमारी इटसेल्फ, एंड दैट्स ए ऑनेस्ट कन्फेशन गाइस। लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, लर्न इट, समझ जाओ, सीख लो और समझ जाओ। जो भय है, जो फियर है, वो बीमारी से भी ज्यादा पैरामाउंट है। इसलिए आप जब नेक्स्ट टाइम उबर में ट्रैवल करोगे तो नहीं केतन भाई ना नहीं करोगे, लेकिन जेब से क्या निकालोगे? स्प्रे डिसइंफेक्टेंट गाड़ी की सीट पे छिड़कोगे, फिर बैठोगे। रेस्टोरेंट में जाओगे तो कितना स्पेसिंग है 2 कुर्सी के बीच में, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे। प्लेन में बैठोगे तो बाजू का सीट खाली रखने का एक्स्ट्रा प्रीमियम दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहिए किसी व्यक्ति से इतना क्लोज रहने का। So the entire game of how you're going to do business will change. Safety will be more in focus. यदि अपने प्लांट में ISO 19,000, 11,000, 20,000, पता नहीं मेरे को, आपके ISO के बहुत सारे फंडा होते हैं, तो मेरे को उस पर ग्रिल मत करो, लेकिन एक नया ISO जरूर आएगा जो बोलेगा कंटेनमेंट फ्री, मतलब इसमें कुछ भी कीटाणु फीटाणु नहीं है, ऐसा भी आएगा। मॉल में एंट्री लेने से पहले ऐसे टनल होएगी जिसके अंदर से पास होना पड़ेगा। वो टनल आपका शरीर का टेम्परेचर ये सब चेक करेगा। आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया नॉर्मल बीमारी के कारण, तब भी बोलेगा गेट आउट। बेचारा सादा ताव आएगा तो भी क्राइम हो जाएगा, ट्रस्ट मी।
सिंपल सिंपल ताव आएगा ना तो भी क्राइम हो जाएगा। सिंपल बुखार आया, बोला मेरे को सादा बुखार है, नहीं पण तू कोरोना। अरे कोरोना बीमारी नहीं हुआ, बंदे का लेबल हो गया। बिल्डिंग में किसी को हो जाता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग लोग उससे अछूत का व्यवहार करने लगते हैं। अबे जवान आदमी को भेजो, उसको कुछ नहीं होएगा, हाथ मुंह धो लो, मुंह पे ऐसा पट्टा बांध दो, दैट्स ओके। बट द फियर इज गोइंग टू बी पैरामाउंट। सो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड द थर्ड वर्ड स्पेसिंग। मतलब कभी आप किसी जगह पे जाओगे तो जितना ज्यादा स्पेसिंग होएगा, ऑब्वियसली सामने वाले का रिसोर्स उतना ज्यादा यूज होएगा, एंड जितना ज्यादा रिसोर्स यूज होएगा वो उतना ज्यादा प्रीमियम मांगेगा। तो पोस्ट कोरोना यू कैन एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट महंगाई, प्राइस राइज। क्यों? वो केतन भाई मेरा तुम्हारा इच्छा नहीं, अरे मतलब क्या डिजायर नहीं है ऐसा, पर चॉइस नहीं होगा। क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्पेसिंग, इस पैरामीटर को कंप्लीट करने के वास्ते आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा नहीं होगी। I'll give you one example. Just pay attention, guys. Everybody pay attention, guys. एक कंपनी है एंड कंपनी अपने बंदों के लिए बस बेचती है और बस में से पिकअप करके आती है। स्पेसिंग को प्रैक्टिस करने के लिए उसने एक सीट पे एक बंदे को बिठाया, पैरेलल सामने सीट पे एक, जबकि 4 लोग बैठे थे, अभी 2 लोग बैठे हैं। तो पूरी की पूरी जो सीट है वो 44 सीटिंग होती है, उसमें बैठे कितने? 22 लोग। पर मेरे को लाने तो उतने ही लोग हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, सुबह 7 बजे जो मेरी ट्रिप स्टार्ट होती थी, अभी 6:30 बजे स्टार्ट होएगी, एंड जो 8:30 बजे खत्म होती थी वो लास्ट ट्रिप मेरी 9 बजे खत्म होएगी। तो फिर ज्यादा ट्रिप होने लगे, ऑब्वियसली मेरी ज्यादा ट्रिप चालू हो जाएगी, तो पेट्रोल डीजल कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू माय कॉस्ट। इट वाज नॉट थॉट बट इट हैज टू बी डन, देयरफॉर इट विल इंक्रीज। मेरी तुम्हारी इच्छा नहीं है गाइस, बट ये चीज के कारण अभी समझो तुम्हारा नए टाइप का ऑडिट आया, वो ऑडिट कराने के लिए तुमको कुछ प्रोसेस बिठाने पड़े, वो प्रोसेस को बिठाने के लिए तुमको सर्टेन तकेदारी लेनी पड़ी, उसका खर्च होएगा। अब किससे चार्ज करोगे? कंज्यूमर से ही चार्ज करोगे। अच्छा, कंज्यूमर मतलब आपके तो कस्टमर एंड कंज्यूमर भी अलग है। आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो शायद वो कस्टमर है, एंड यूजर कंज्यूमर है, वो पे नहीं करेगा, बीच वाला स्क्वीज करेगा, कोई ना कोई तो पे करेगा। एंड यदि वो कोई पे नहीं करेगा, आप बेयर करोगे, आई मीन समबडी विल हैव टू डू इट, बट इट इज गोइंग टू हैपन। सो एक प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अभी देखो आप होम डिलीवरी वाले में वो स्विगी वाला बोलता है अनटच्ड बाय हैंड, बोले खाना बनाते वक्त किसी ने तो टच किया होगा ना भाई, अनटच्ड बाय हैंड। बट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट एज अ मार्केटिंग। मेरे पास ऐसे 5 नहीं, मेरे पास 8 एग्जांपल है। एक्चुअली पता है बेस्ट चीज क्या होने वाली है? जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा ना, एक जन का धंधा है ना सखत बूम करेगा। Don't take my answer on the face value. Look at my smile and decide. The answer is not going to be a normal answer. Wicked answer आएगा। तन्नू भाई ने पकड़ लिया, बोले कुछ लोचा है आंसर में। पता है किसका धंधा बूस्ट करेगा? स्टार्ट होते ही अमित मिश्रा इज टेलिंग लॉयर्स का, वो एक अलग मेरा डिबेट हो जाएगा, अपन उसको नहीं जागरूक करेंगे। सबसे मैंने बोला ना, मेरे स्माइल पे जाओ, इट्स नॉट ए नॉर्मल आंसर, मैंने आपको पहले ही बोला। इमीडिएट जो धंधा चालू हो जाएगा सबसे इमीडिएट, वो है हजामत वाले का। सैलून का धंधा चालू हो जाएगा धड़ाक सुन, क्योंकि कुछ लोग महीने भर से गए नहीं है, इसलिए तो अपना वीडियो बंद रखते हैं, बोले मैं दिखा नहीं सकता अपने बाल कितने बढ़ गए। या फिर कुछ लोग ने अपना कितन भाई का हेयर स्टाइल एडॉप्ट कर दिया होगा, क्लीन, माथा कोटी नहीं चाहिए। देयर आर पीपल लाइक दैट। मेरे जीजा जी है, एकदम क्लीन करा दिया। मतलब क्या हुआ? बोले कितना इधर से निकलता पूरा क्लीन ही कर दिया। एंड कुछ लोग रखेंगे। देयर इज ए कंपनी कॉल्ड एनरिच, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, पर एनरिच करके एक सैलून है। उन्होंने अपने कस्टमर्स को एक व्हाट्सएप भेजा है, विच इज ए ऑनलाइन क्वेश्चनर, जिसमें ऐसा लिखा है कि आप जब आते हो तो आपको चाहिए कि जो बंदा आएगा और जो आपका हेयर कट करेगा इज कोरोना फ्री एंड नेगेटिव, ऐसा कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये डिसइंफेक्टेड वाला चीज चाहिए,
एक्चुअली ऐसे वैसे क्वेश्चन देके रखें और आप उनको टिक मार्क करो, दे आर गोइंग टू टेक दो स्टेप्स देयर. For example, after every haircut, all the tools will be put in a dabba, and the dabba is of UV rays, ताकि हर प्रकार का जर्म्स मर जाए, हर प्रकार का वायरस मर जाए, फिर आप पे यूज होगा. आपके जाने के बाद वो सीट को डिसइंफेक्ट किया जाएगा. That's what they're writing it. Guys, ये सब करेंगे, there is an increment in the cost, which will result into increment in the price. But that is going to happen. So आप आपके फ्यूचर में ये सोचना शुरू करो कि how you are going to use either one of these or all of these in your marketing collaterals, in your reach to your customers, in your reach to your consumers. मतलब जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक का लेयर है, या हमारा डब्बा है उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक का लेयर है, नो जर्म्स लास्ट. नहीं तो लोग क्या करते हैं कि घर में कोई भी डब्बा ला के रखते हैं और उसके ऊपर डेटॉल का एक पोछा लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर जर्म्स होते मर जाते हैं. वेजिटेबल आजकल लेके बाय करते हैं और उसको बेकिंग सोडा में डाल देते हैं या नमक में डाल देते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं. इतना क्लीन वेजिटेबल आपने जिंदगी में अभी खाया नहीं, उतना क्लीन वेजिटेबल अभी आप खा रहे हो, आपको पता नहीं होएगा. इतना क्लीन खा रहे हो, देखना बीमार होने का चांस ज्यादा है आपका, क्योंकि इतना क्लीन का आदत नहीं रहा ना. नहीं गाइस, जोक्स अपार्ट, देयर इज ए फैक्ट टू इट. देयर इज अ फैक्ट टू इट. मैं बोलता हूं, अपने बहुत सारे बच्चों को भी बोलता हूं कि यदि आपने रास्ते की पानी पूरी खाई है, बोलते हैं हाँ. हर रोज खाते थे, बोले हाँ. आपने वड़ा पाव खाया है, हाँ. तो फिर आपको वायरस कैसे टच करेगा? आपका इम्यूनिटी देखो कितना मजबूत है. मतलब जिसमें वो सब टिक गया तो वायरस बेचारा कहाँ टिक पाएगा? एंड ये तो फिर भी चाइना का है, उसको तो इंडियन फूड से जमेगा भी नहीं. हम लोग तो चाउमीन भी इंडियन मसाले के साथ खाते हैं. तो वेरी सिंपल पॉइंट गाइस, द फियर इज स्ट्रॉन्गर देन द बीमारी. People are going to use three fundamentals: safety, security, and spacing to market their product, their service, their business, their facility. You will have to adopt to it. If you don't adopt, somebody else will adopt. If they use it in marketing, perhaps they will be able to develop more trust than you can. तो शायद हमसे वो बिजनेस चला जाए. इसलिए दुखी नहीं होना, एडॉप्ट करना शुरू कर देना, समय से कर लेना. जितना जल्दी हम कोई चीज को एडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी अपन मार्केट में उस चीज का डंका यानी कि अनाउंसमेंट कर सकेंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे. एंड जितना हम इस प्रोसेस में लोगों तक जल्दी पहुंच पाएंगे उतना हम लोग को फायदा होने का चांस है. With those words, guys, I would like to end my session. Okay, it was roughly planned for 50 minutes. I slightly went overboard by 55 minutes, but I hope you enjoyed the session with me, and I hope you take home some lessons on this. I am opening for Q&A, पर Q&A का एक नियम रखेंगे, जिसको सवाल पूछना है वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी लोग म्यूट ही रखें. प्रॉब्लम वो नहीं है, क्योंकि अब जैसे सब लोग अनम्यूट अपने आप करना शुरू कर दोगे, घर में जो कुकर की सीटी बज रही है वो सुनाई देगी, बच्चे जो घूम रहे हैं वो सुनाई देगा, आपकी वाइफ आपको बुला रही कब की वो भी सुनाई देगा. अननेसेसरी आपका पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा. इससे बेटर है कि जिनको सवाल पूछना है वही पूछें, बेटर रहेगा. एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइस. थैंक यू वेरी मच गाइस. गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड heartiest wishes that it's going to be a good time on the other side. हाँ, इंजर्ड जरूर होंगे, चोट जरूर लगेगी, इम्यून नहीं है, 100% चोट लगेगी. कुछ लोगों को 20-30% लगेगी, तो कुछ लोगों को 40-50% तक लगेगी, कुछ लोगों को 50-60% लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस. बेचारे हमारे जो स्टूडेंट ट्रैवल बिजनेस वाले हैं वो मेरे को आज ऐसा बोलते हैं कि सर वी आर ऑलरेडी इंजर्ड, विच इज राइट. लेट अस एक्सेप्ट इट गाइस. मतलब सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं. सागर जी एक 5 मिनट लूंगा ज्यादा, पर एक एग्जांपल कुछ स्ट्राइक हुआ तो बता देता हूं. ओके, तो मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज इन द ट्रैवल बिजनेस. ये जब शुरुआत हुई थी तब भी मैंने उसको एक फोन किया था, तो बेटा हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन. पहले तो फॉर्म में बोल दिया सर एवरीथिंग इज गुड, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ग्रेट, एब्सोल्युटली फाइन. एंड फिर धीरे से एक लाइन बोलता है, पर सर एक बात बताऊं, पिछले 12 साल में जो काम नहीं किया वो करना पड़ा. क्या किया? बोले सर एक जन को नौकरी से निकाला.
and the father could not sleep. एक जन को मैंने बोला अपन क्यों? बोले नहीं, हमने उसको 3 महीने का सैलरी दे के निकाला है, लेकिन पता चला ये ज्यादा लंबा चलेगा, अपना आज ही 0 हो गया है, बाकी के महीने में कैसा रहेगा पता नहीं है। यदि डोमेस्टिक ट्रैवल खुला ही नहीं तो अपना 0 का 0 रहेगा, नेगेटिव भी चले जाएंगे। इसलिए कुछ बिजनेसेस गाइस विल बी रियली बैडली हिट 100%। कुछ लोग इस एडवांटेज लेंगे, मतलब मेरे कुछ 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फार्मा बिजनेस के हैं, एंड उसको जब भी मैं फोन करता हूं तो उसके वजन में 1-2 किलो बढ़ा ही रहता है। मैं उसके फादर को भी बोला कि इस साल शादी करा लो, खर्चा डालने में थोड़ा आसान हो जाएगा। बोले हाँ सर वो पॉइंट है, हाँ लेकिन आप कभी इस बार ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर नहीं पाओगे, यदि शादी होगी तो सब लोग मास्क पहन के आएंगे, कैसा लगेगा? बट एनीवेज, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स, यू अंडरस्टैंड, फार्मा बिजनेस, एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स। बट हैविंग सेड दिस guys, the idea is some businesses will get brutally damaged, some business will bail out, sail out, get good. So accept करो इस रियलिटी को, ऑप्टिमिस्ट ज्यादा ना हो एंड ज्यादा पेसिमिस्ट ना हो। पेसिमिस्ट तो होने का आवश्यकता ही नहीं है गाइस, हम लोग वो पोलियो वायरस से निकले हैं, अभी का डेवलपमेंट तो मच बेटर है, वी विल बी बेटर ऑफ देन अदर्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम इन लाइफ गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम यू आर स्टक। अश्विनी जी ने बोला है मेरा नाम वो पेटेंट करा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम खाली इप्का के लिए, बाकी और कोई पेटेंट एसोसिएशन के नहीं जाऊं। अरे अश्विनी जी आप फोन करो, आप राजीव भाई को बीच में रखो, आपके लिए रेडी है, मैं हाजिर हूं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। it feels good to connect to people whom I know, केतन भाई, अमित भाई, जैसल हैं, तो कन्नू भाई हैं, these are people whom I connect, अपना जयेश नागरेचा है, महादेवन है, राजीव भाई obviously always there, so it's always great to connect with you, absolutely fine guys, thank you. Thank you, Samish bhai. Thank you so much. It was a great, great session. I think I can see from the number of participants, those who have participated in your session, it was really amazing. So as Samish bhai has said, अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ हेल्प लेनी है, समीश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप अपने अश्विनी जी हैड आस्क्ड टू अनम्यूट। अश्विनी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। आई वाज जस्ट गोइंग टू बी थैंकिंग यू कि आपने हमें अपना पेटेंट कराने का मौका दे दिया। बट सर इट्स अ ग्रेट फीलिंग, मतलब आई थिंक सो यू आर राइट, दिस too shall pass, that famous saying is always good, right? With this too shall pass. Of course you may, but my thinking is that if we work for 40 years, can we not sustain for 1 year? If we sustain for 1 year after 40 years of working, then that means that 40 years was default, not the 1 year. Correct. So if we have survived over all these things, and okay, yes, this may lead to losses. This may lead to a cash loss or anything of that sort. But I think so. We've all worked for 40, 30 years. We have our businesses which are stable. We may be having EMIs, everything, and if we can't repay them, no problem. We can defer them and go to the banks. Like you said, he went to the electricity department, which is one of the most brutal, even brutal than the bank. Matlab where charges for a minimum charge for supplying you no electricity. Correct. Bank only charges you for what you've drawn. Correct. But anyway, I think thank you very much, sir. It was a very, 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 very encouraging session. Thank you. तो फ्रेंड्स, कोई किसी का क्वेश्चन हो? केतन भाई, समीश भाई। हाँ जी सर। जी राजीव। What do you think? मतलब I think this recession, this type of atmosphere and post-COVID, there would be much more healthier coordination with or support be received from your team members also, because when you have adjusted to them,
that will bring a different level of sincerity and honesty within the system also. राजीव भाई, मैं आपको ना 2 उदाहरण दूंगा, एंड ये कटिंग एज उदाहरण है इस एंगल से कि ना कि मेरे बच्चों ने किया इसलिए कटिंग एज, इनका प्रोसेस सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहली चीज, अपना एक लड़का है जो कपड़े का काम करता है इन अमृतसर, एंड उसके यहाँ दे सरदार्स, एंड जिस दिन ये हुआ था उस दिन लोग ऐसे भाग रहे थे, तो बहुत सिंपल है कि वो लोग जैसे भाग रहे थे, इसके फादर ने भी बोला कि ये भाग रहे थे, तो उनके फैक्ट्री पे रहते थे, दे आर ऑल रेसिडेंट इन फैक्ट्री ओनली, उनको रोक दिया, और रोकने के बाद बोला कि मत जाइए। फिर बोले पर सर हमारा तो फ्यूचर, बोले अब चिंता मत करो ना, आप पहले भी फैक्ट्री में रुकते थे, जो हम उत्पादन करते थे उसमें से कमा के खाते थे, अभी हम लोग फिर भी मैनेज कर सकते हैं, अब रुक जाओ, एक रात रुक जाओ। एवरीबडी स्टेड बैक। दूसरे दिन ये भाई साहब अपने घर से सब खाना बना के अपने वर्कर फैमिलीज के लिए लेके गया। सुनो, हाँ, वर्कर्स के लिए, वर्कर फैमिलीज के लिए। तो मेरा स्टूडेंट उसके पापा को बोलते कि पापा ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं बेटा हमारे में तो लंगर का बहुत पुराना प्रथा है, ये तो लंगर समझ लो, एंड इससे बेटर काम तुम्हारी लाइफ में क्या होएगा कि जो तुम्हारे लिए काम करते तुम उनके लिए लंगर कर रहे हो। इन 4 days, राजीव भाई, इन 4 days all the employees got together, started cooking their own kitchen, and इसको आके बोलते हैं सर ये मशीन खोल देते हैं ना, जब भी चालू होएगा तो फटाफट चालू करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाए। इनको इंग्लिश वर्ड नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, मशीन खोल देते हैं, कोई खराबी वराबी होगी तो रिपेयर कर लेते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देते हैं। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उनकी लैंग्वेज तेल लेने गई, पर बंदे ने कर दिया। एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज टेलिंग समीश भाई मेरा फैक्ट्री इतना रेडी हो गया है कि जिस दिन चालू होगा ना उस दिन मैं जितना चाहिए उससे 1.2 या 1.3 टाइम्स आउटपुट निकल पाऊंगा। अहमदाबाद में अपना एक स्टूडेंट है, उसके पप्पा को मैंने जब बताया था तो उसके पप्पा ने एक मैसेज भेजा था। आई डोंट हैव द मैसेज बट आई हैव द वर्ड्स। गाइस इट्स इन गुजराती, आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी, बट उसने 2 लाइन का मैसेज भेजा था अपने हर एम्प्लॉय को, सिर्फ 2 लाइन का, एंड गुजराती में था। मैं एग्जैक्ट वर्बेटिम हिंदी करूंगा। दोस्त तेरा ईएमआई मेरा, तेरा कोई भी प्रॉब्लम पहले मेरे को बाद में तेरे को। He sent this message to his 110 employees and their manufacturer of firefighting equipment. मैंने बोला साहब कैसा चल रहा है धंधा? बोला समीश भाई बेस्ट है, फर्स्ट क्लास है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की लग पड़ी है, फट चुकी है, एक भी प्रोजेक्ट इन द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बिकेगा का? तो मैं बोला इतना खुश किस चीज का हो रहे हो? बोले मेरे एम्प्लॉइज हैं, उनको जब मैंने रहने का वो मच्छरदानी जैसा अरेंजमेंट करके दिया है तो वो लोग आके बोले कि सर यदि ये कपड़े का मच्छरदानी बन सकता है तो क्या प्लास्टिक का बन सकता है क्या? बोले क्यों? यदि प्लास्टिक नॉन वायरस वाला बन सकता है तो हम ये कंटेनमेंट जोन को सप्लाई कर सकते हैं। इन 3 days his employees created something and now they are supplying to government of Gujarat. गाइस आपके एम्प्लॉय है ना, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, आप थिंकिंग गाइस हो, आप समझो। आप जाके आज तक कभी भी डब्बा को उठा के 5 डब्बा को उठा के रखोगे ना, मैं सच बताऊं आपकी कमर में तोड़ आ जाएगा। 4 घंटे यदि मशीन के सामने खड़े रहोगे काम करोगे, नाक में आपके जितने बाल हैं सब जल जाएंगे, उतना केमिकल उड़ेगा। एंड एक मशीन में ब्रेकडाउन आ गया ना, सेठ आपको आके एम्प्लॉय आके बोलेगा राजीव सेठ जरा देखो ना कि मशीन कहाँ खराब हो गया। राजीव भाई खुद बोलेगा साला मेरे को भी मालूम नहीं क्या लोचा हुआ है, एक टेक्निकल आदमी को बुलाना पड़ेगा, वो बंदा 5 मिनट में खोल के रिपेयर करेगा। एम्प्लॉय इज योर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, यू आर द थिंकिंग एजेंसी ऑफ ए बिजनेस। आप सोचते हो वो आपके मंसूबे पूरे करता है। आप गाड़ी खरीद सकते हो लेकिन चलाता वो है, तो उसका ध्यान रखना। इट इज नॉट अबाउट दैट नैतिक फर्ज ने ऑल दैट, वो मैं आदर्शवाद में जानता नहीं। अरे मैं तो बहुत सिंपल बिजनेस लॉजिक यूज करता हूं। गाइस बी अंडरस्टैंड, बी सेल्फिश यार। अब उनको संभालो, वो आपको संभालेंगे। इट्स सो म्यूचुअल, इट्स सो म्यूचुअल। एक आदमी मेरे को बोलता है कि सर मैंने एकदम छोटे आदमी जो होते हैं ना उनका सैलरी काटने का सोचा। हम लोग बेवकूफ, उसका सैलरी काट के तेरे को कुछ मिलना ही नहीं है,
उसका सैलरी बेचारे का 15-18 हजार रुपया काटेगा, तो तू उसको देगा क्या? जिसका 1.5-2 लाख है उसके बारे में सोच, इसको तो तू रख। यही तेरा पोस्ट कोविड या पोस्ट लॉकडाउन तेरे को धड़ाधड़ दौड़ा दौड़ी में काम आएगा। पार्टी इधर से माल लेके जाओ, इधर से ये करो, इधर से ये करो, दैट्स इट। So employee is our biggest strength, and guys, trust me, they will be able to do a lot of good things for us. Okay, all right, good. Anybody else, guys? Any other question anybody else has? सागर जी, किसी और को कोई सवाल है? हाँ, अभी और तो सब नहीं है सवाल। ठीक है। सब लोग आपकी प्रेजेंटेशन से, आपके सेशन से सब सेटिस्फाई हो गए हैं। So they are not left with many questions. All of them have left for post-COVID preparations. God bless you, Ashwini ji. That was wonderful. Samish ji, जी, thank you very much. Ketan Okay, Kapadia here. right. I just saw you. वो आवाज आए ना तो मैं इधर उधर ढूंढने पड़ गया किधर है। करेक्ट है। Your session was very informative and a very good learning curve for us. Thank you very much. करेक्ट। Seeing you after a very long time, Samish ji. Right. Okay. All right. So Sagar ji, can I take your leave? Yeah, thank you, Samish bhai. Right. Okay. Thank you very much, Thank you sir. very much. God bless us all. Yes, giving us so much, knowledge to our participants. So friends,